Hello students and friends, welcome back to our physics video classes, Understanding Physics. So students, today we are going to do lecture number 23 of the unit electrostatics, and the heading of the lecture is combination of capacitors. Yes students, combination of capacitors. So students, capacitors को आप कैसे कंबाइन करेंगे if you are having two or more than two capacitors, ये आपको पढ़ना है बेटा। इसके लिए मैं आपको फिर से वापस लेकर जाऊंगा आपकी 10th क्लास की फिजिक्स में, चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। वहां पर आपने रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन पढ़े थे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस, आपको याद होगा। ठीक है, रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज एज वेल एज इन पैरेलल। इन द सेम वे कैपेसिटर्स, दे आर आल्सो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। So in the same way, capacitors can be connected in series or in parallel. So students, series और parallel combination capacitors का किस तरह से आएगा, उसके लिए आप capacitors के derivations करेंगे। series का अलग होगा और parallel का अलग होगा। So we will start the combination of capacitors with the topic of series combination. ठीक है? So the heading is combination of capacitors. So it is of two types. This combination is of two types, series and parallel. ठीक है? So straightforward, we are moving to series combination. Number one is series combination. Series combination. बस कॉम्बिनेशन करने से पहले वी शुड नो कि आप कैपेसिटर्स के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या सिंबल यूज करने वाले हैं। जैसे कि रेजिस्टर्स के लिए हम क्या सिंबल यूज कर सकते थे, ये zigzag लाइंस, दिस वाज फॉर रेजिस्टर्स। ठीक है, रेजिस्टर्स बोलते हैं ना इनको, और रेजिस्टर्स की वो प्रॉपर्टी जिससे वो करंट को अपोज करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, दैट इज रेजिस्टेंस। ऐसे ही हम कैपेसिटर्स के लिए क्या यूज करेंगे, कैपेसिटर्स के लिए हम यूज करते हैं two plates of equal length like this, or one curved plate and one straight plate like this. ये सिंबल्स हम कैपेसिटर्स के लिए यूज करेंगे। ठीक है, सो आई विल बी यूजिंग दिस सिंबल, ये सिंबल मैं सर्किट के अंदर यूज करूंगा। ठीक है, so let there be three capacitors of capacitance C1, C2 and C3. So students, हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटी है C1, C2 and C3, and they are connected one after the other. And they are connected one after the other. बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में if capacitors are connected one after the other such that first plate of the second capacitor is connected to the second plate of the first one, and then first plate of the third is connected to the second of the second one, and so on, such that only the first terminal of the first capacitor and the second terminal of the last capacitor are free to be connected to the supply of potential difference. ठीक है, मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन का सिर्फ पहले कैपेसिटर का एक टर्मिनल और लास्ट कैपेसिटर का एक टर्मिनल ही फ्री रहेगा, और वो फ्री कहां पर लगने के लिए है, वो फ्री वहां पर होगा लगने के लिए जहां से उसको पोटेंशियल सप्लाई मिलेगी, पोटेंशियल डिफरेंस की सप्लाई मिलेगी। और बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की सप्लाई कहां से मिलती है, एक बैटरी से, बैटरी से। सो यहां से आप बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं इन दो एंड्स पर। This battery will provide potential difference to the combination of capacitors C1, C2 and C3. Suppose potential difference applied is V. Potential difference applied is V. So students, point A and point B, between these two points potential difference given is V. Okay. अब हमें देखना है कि कैपेसिटर्स की सीरीज कॉम्बिनेशन की कंडीशंस क्या होंगी। बेटा जैसे मैंने आपको बताया
capacitors must be connected one after the other. And one more point you have to take care of कि पूरे कॉम्बिनेशन में, पूरी लेंथ में जो आप सीरीज मानकर चल रहे हो, कहीं भी बीच से कोई साइड ब्रांच ना निकल जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे रेजिस्टर्स में होता था। देखो बच्चों, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। कब तक? जब तक कि कोई बीच से दूसरी ब्रांच ना निकल जाए। अगर कहीं से बीच से कोई और दूसरी ब्रांच निकल जाएगी, नाउ दिस R1 is not in series with R2 and R3. Same is for capacitors. Same is for capacitors. There must not be any side branch between A to B. जहां से जब तक आपने इसको सीरीज माना है, वहां से वहां तक कोई भी साइड ब्रांच नहीं होगा। मतलब इसका ये हुआ कि कोई जंक्शन नहीं होगा। ठीक है, जंक्शन ऑफ वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स स्ट्रेट हो गया। Now the important concept in the series combination is that all the capacitors in series have same amount of charge. बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में होता था। करंट पासिंग थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स इन सीरीज वाज सेम। यही पढ़ा था 10th क्लास में। अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कोई करंट पास कराओगे तो वो करंट आई R1 से भी जाएगा, R2 से भी जाएगा और R3 से भी जाएगा। तो करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंसेस इन सीरीज इज सेम। In the same manner, charge on the capacitors, on the plates of the capacitors connected in series is same. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल, इस बैटरी में करंट का सोर्स है, पोटेंशियल की डिफरेंस के साथ क्या आता है? करंट। और करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो फॉर एग्जांपल, इस बैटरी में कैपेसिटर C1 को इस प्लेट पर, लेट द प्लेट इज स्मॉल a, स्मॉल b, तो प्लेट A पर चार्ज दिया है +Q। नाउ ड्यू टू इंडक्शन, इस पर ध्यान देना आप लोग, ड्यू टू इंडक्शन दूसरी प्लेट पर क्या चार्ज आ जाएगा? -Q। ओके, एंड बिकॉज let this plate is CD and this is EF, small a b c d e f, and because the plate small c of the capacitor C2 is connected directly with the plate B of the capacitor C1. So students, अगर इसके इनर सरफेस पर Q1 यहां आ चुका है, so Q प्लस चार्ज C पर होगा, so that ये सिस्टम पहले नेट चार्ज 0 था जिसमें से -Q इधर आ गया टू इंडक्शन, तो +Q इधर चला जाएगा। कंडक्शन इंडक्शन याद करो, हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टार्टिंग क्लासेस थी। ठीक है, वहां पर हमने यही पढ़ा है कि अगर आपने इंडक्शन से कुछ चार्ज इधर माइनस अट्रैक्ट करा लिया, सो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, वैसे यहां पर भी होगा। -Q अगर इंडक्शन से आएगा तो +Q में आएगा ना। अगर ये +Q फिर से क्या करेगा? यहां पर इंडक्शन से -Q एंड सो ऑन, यहां +Q यहां -Q। सो आप देख रहे हैं कि सारे कैपेसिटर्स जो भी सीरीज में लगे होंगे, वेदर दे बी 3 और 30, ठीक है, वो कितने भी हो, सबके पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर वो सीरीज में लगे हैं तो सबके पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा। सो कैपेसिटर्स इन सीरीज have same amount of charge, और ये उतना ही होता है जितना बैटरी ने दिया, जितना सोर्स ने दिया। ठीक है, सोर्स ने जो चार्ज दिया Q, वही सबके पास आया है। Q is equal to the charge given by the source. Okay, so one important point। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंसेस की, कि इन कैपेसिटर्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे। बट अलग अलग कैपेसिटर्स के पास अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आप इन सब के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे, Q = CV, Q = CV, Q = CV। तो उससे आपको पता चलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग क्यों होगा। देखो, Q = CV अगर फर्स्ट के लिए लगाओगे तो फर्स्ट पे चार्ज Q है, उसकी कैपेसिटेंस C1 है, और अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस आपने V1 माना है तो Q/C1 तो आ गया V1। इसी तरीके से Q/C2 आएगा V2 एंड सिमिलरली Q/C3 आएगा V3। सो हम क्या कह सकते हैं यहां से? हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, याद रखिएगा।
सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर्स लगे हैं, हर इंडिविजुअल कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस उसकी कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देख लो Q upon C is equals to V, मींस जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसके पास कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो इन तीनों में से जिसका भी कैपेसिटेंस ज्यादा है, C1 C2 C3, C1 C2 C3, जिसका भी कैपेसिटेंस ज्यादा है उसके पास कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 is V1 and across C2 is V2 and across C3 is V3। ये हमारे पोटेंशियल डिफरेंसेस की वैल्यूज हो गई। ओके, नाउ यूजिंग कैपेसिटर्स इन सीरीज have different values of potential difference across them such that, किस तरह से होती है वो different values, such that potential difference is inversely proportional to its capacitance। potential difference is inversely proportional to its capacitance, ठीक है। and sum of potential differences is equal to the total potential difference supplied by the source। ठीक है, जो इस ब्रांच पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना होगा, इज इक्वल टू V होगा। ठीक है, दैट इज फॉर श्योर, इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। छोटा सा डेरिवेशन है, ध्यान से देखिए। using Q is equals to CV for all capacitors, जितने भी कैपेसिटर्स सीरीज में हैं सबके लिए Q is equals to CV लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे, V के लिए तो for C1 के लिए जब मैंने लगाया तो V1 मेरे को मिला Q upon C1, और जब मैंने C2 के लिए लगाया तो I obtain V2 is equals to Q upon C2, and when I use the same for C3, the result is V3 is equals to Q upon C3। let these equations be 2A 2B 2C। adding all these equations what we get, V1 plus V2 plus V3 तो इधर आएगा, एनी डाउट, देख लो, और इधर आएगा Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3, Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3। Q कॉमन है ना, Q is common and V1 plus V2 plus V3 is V from equation number 1। so V is equals to Q ब्रैकेट में आ गया 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। okay, is it okay? yes। now what I am going to do is I will take this V to this side of the equation, तो यहां क्या रह जाएगा 1 is equals to Q by V, 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। and what is Q by V, ध्यान से देखो, what is Q by V, what can you say about Q by V? इस Q by V के बारे में आप क्या कह सकते हैं, what is Q? Q is the total charge supplied by the battery, charge supplied by source, this is total charge supplied by source। and what is V? V is the total potential difference supplied by this battery to the series combination of the capacitors। so अगर Q total charge है और V total potential difference है एक given combination के लिए, तो what is Q by V? what is Q by V? using this formula, what is Q by V? Q by V is capacitance, किसका capacitance? Q इस पूरे कॉम्बिनेशन को चार्ज मिला, V इस पूरे कॉम्बिनेशन को पोटेंशियल डिफरेंस मिला, तो C क्या होगा, इस पूरे कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। ओके, इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। तो वेयर Q by V is equals to C equivalent, in spite of the word resultant I am using equivalent, is
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहां पर। लेट दिस इक्वेशन इज 3, substituting in equation 3 we get 1 is equals to q by v is c equivalent, c equivalent 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3, और इसको आप वापस इधर लेकर आएंगे तो it gives 1 upon c equivalent is equals to 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो इक्विवेलेंट का ई क्यू हटा लें, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा सब्स्टिट्यूट लगाना जरूरी नहीं है यहां पर, बिकॉज सी सिंबल हमने कहीं यूज नहीं करा, हमने यूज करे थे c1 c2 c3। ठीक है, सो वेयर c इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द रिजल्ट इज दिस। मतलब क्या है, क्या 1 upon c इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है? नो, c है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मींस जब आप इस फॉर्मूले को यूज करके फाइनल आंसर निकालेंगे, सपोज इस फॉर्मूले को यूज करके मेरे पास आंसर आया 6, so 6 is not the answer is c is equals to 1 upon 6, 1 upon 6 is the answer for equivalent capacitance। ओके, लास्ट स्टेप पे बच्चे यहां छोड़ देते हैं आंसर्स, नॉर्मली गलती हो जाती है, लास्ट स्टेप c नहीं है, 1 upon c निकाला है आपने, तो आपको आंसर देना है c का, तो रेसिप्रोकल कर देना इसका बाद में लास्ट में। ठीक है, नाउ हाउ कैन वी स्टेट दिस फॉर्मूला इन वर्ड्स? इस फॉर्मूले को वर्ड्स में कैसे बोलेंगे आप लोग? देखो, द रेसिप्रोकल ऑफ द, रेसिप्रोकल है ना, ये सब भी रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स, द सम ऑफ सम reciprocals of individual capacitance of all the capacitors connected in series। ये स्टेटमेंट आप इसके लिए वर्ड्स में बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपके पास n कैपेसिटर्स हैं तो क्या करेंगे? n हो या कितने ही हो, इस फॉर्मूले को उतने ही कैपेसिटर्स के लिए आप लिख सकते हैं। फॉर n कैपेसिटर्स इन सीरीज, for n capacitors in series, the formula can be written as 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3। कब तक लिखोगे? cn तक लिखोगे। ठीक है, now I am discussing some special cases with you। ओके, यहां से आप हेडिंग लिख सकते हैं स्पेशल केस। so I am discussing some special cases with you। ओके, नेक्स्ट, इसी में अभी आप क्या कर सकते हैं, देखो स्टूडेंट्स, अगर n कैपेसिटर्स सारे इक्वल हो, मतलब जितने भी आपने सीरीज में लगाए थे वो सब इक्वल कैपेसिटेंस के थे, फॉर एग्जांपल सारे 2 माइक्रोफैरेड के लगा दिए सीरीज में n, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? इफ ऑल द n कैपेसिटर्स हैव इक्वल कैपेसिटेंस, सो आंसर क्या आएगा? 1 upon c इक्विवेलेंट, 1 upon c इक्विवेलेंट, इसके लिए लिख दिया मैंने, थोड़ा इक्विवेलेंट ही कर लें आप, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। 1 upon c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 upon c प्लस 1 upon c प्लस 1 upon c। कब तक लिखना है इसको? n टाइम्स, n टाइम्स लिखेंगे। सो 1 upon c प्लस 1 upon c प्लस 1 upon c प्लस 1 upon c, n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा? n upon c, बेटा 1 upon c प्लस 1 upon c प्लस 1 upon c 3 बार ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3 upon c। 5 बार ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5 upon c। n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा? n upon c। सो 1 upon c इक्विवेलेंट विल गिव यू n upon c, या फिर c इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? c by n, c by n। यहां से आप एक चीज बता सकते हैं डायरेक्टली, देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने n कैपेसिटर्स जो कि सारे सेम कैपेसिटेंस वाले थे सीरीज में लगा दिए तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? c by n। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो सारे कैपेसिटर्स 100 माइक्रोफैरेड के थे, ऑल द कैपेसिटर्स वर ऑफ 100 माइक्रोफैरेड, तो और सपोज कैपेसिटर्स थे 20,
सो 100 माइक्रोफैरेड अपॉन 20, ये आया C इक्विवेलेंट। व्हाट इज द आंसर? 5 माइक्रोफैरेड। अब इक्विवेलेंट का आंसर 5 माइक्रोफैरेड, इट इज लेस देन 100, जो इंडिविजुअल का आंसर था। इट मींस अगर आप कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएंगे तो रिजल्ट उसका जो आएगा वो कम हो जाता है, इट रिड्यूसेस, रिजल्ट कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? जो इस पूरी कॉम्बिनेशन में सबसे छोटी वैल्यू का कैपेसिटेंस होगा ना, उससे भी कम आंसर आएगा। समझ गए? सपोज एक कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड का, एक है 3 माइक्रोफैरेड का और एक है 5 माइक्रोफैरेड का। इनका आंसर जो आएगा वो 2, सबसे छोटा कौन है? 2, उससे भी कम आएगा। याद रखिए ये पॉइंट, ओके? इससे भी कम आंसर आएगा 2 माइक्रोफैरेड से भी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब आप कैपेसिटेंस को लगाते हैं, फाइनल आंसर जो होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द कैपेसिटर्स, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द कैपेसिटर्स। ओके, नाउ आई विल डू वन मोर स्पेशल केस। कौन सा स्पेशल केस करेंगे? कि जब सिर्फ 2 लगाए, सिर्फ 2, अगर हमने सिर्फ 2 कैपेसिटर्स लगाए हो सीरीज में, तब क्या हो सकता है? देखते हैं बेटा, तब क्या हो सकता है। So another special case is only 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज। 2 लगाओ या 30 लगाओ, मैंने आपको बोला है ना, आंसर ये रहना है, 2 के लिए लिख लो। बेटा मेरे को सोल्व करना है, सोल्व करने का मैथमेटिकल मेथड क्या होगा? एलसीएम ले लेते हैं सर। C1 C2 नीचे एलसीएम, ऊपर क्या हो जाएगा? C2 प्लस C1। ओके, मेरे को तो C इक्विवेलेंट चाहिए ना, ये तो अभी 1/1 C इक्विवेलेंट है। तो मैं आपको बताया क्या करना होता है लास्ट स्टेप पर? रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कर दो, C इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो C1 C2 तो ऊपर आ जाएगा और C1 प्लस C2 जो सम था वो नीचे आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। 2 कैपेसिटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स पे छोटा सा पार्ट बन जाता है। ठीक है, जो बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं उसका आप हर पॉइंट सॉल्व नहीं करेंगे, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको आप डायरेक्टली लिखेंगे, तभी तो आप बड़े न्यूमेरिकल को जल्दी और इफेक्टिवली सॉल्व कर पाओगे, वरना छोटे छोटे पार्ट्स में लटका रह जाओगे उसके। ठीक है ना? क्या कैसे याद करेंगे इसको? देखो ध्यान से देखो क्या है। जब 2 कैपेसिटर सीरीज में लगाएंगे तो इक्विवेलेंट आंसर जो आएगा वो होगा उन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन उन दोनों का सम। तो यू कैन लर्न एज प्रोडक्ट अपॉन सम, प्रोडक्ट अपॉन सम कर दिया करेगा। ठीक है, सपोज मैंने सिर्फ 2 लगाए, सिर्फ 2 सीरीज में, वन इज ऑफ 6 माइक्रोफैरेड, अनदर इज ऑफ 3 माइक्रोफैरेड, ये सीरीज में लगे हुए हैं। इसका रिजल्ट क्या आना है? प्रोडक्ट 6 3 18 अपॉन सम 6 प्लस 3 9 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। डायरेक्ट आंसर 2 माइक्रोफैरेड इसका आंसर होगा। ठीक है ना? इस तरह से आप इसको यूज करेंगे और इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे इसको बड़े न्यूमेरिकल्स में। ठीक? सो स्टूडेंट्स, ये हमारा हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जो मेन पॉइंट्स इसमें हमने किए हैं वो हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर्स पर बराबर का चार्ज आता है और ये उतना ही होता है हर कैपेसिटर पर चार्ज जितना सोर्स ने दिया है उस ब्रांच को। उस ब्रांच को याद रखिएगा जिस ब्रांच की आप बात कर रहे हैं आप। ठीक है, क्योंकि हो सकता है सोर्स से कोई और ब्रांच भी कनेक्टेड हो, सोर्स का चार्ज वहां भी जाएगा फिर। ठीक है ना? इसलिए मैं बोल रहा हूं उस ब्रांच को जिसकी आप बात कर रहे हैं। सेकंड इज हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। ठीक है, और हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस एक गिवन सीरीज कॉम्बिनेशन में उसके कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू बड़ी होगी उसके पास कम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन सबके पोटेंशियल डिफरेंस को सम करोगे तो उस ब्रांच को, अगेन माय वर्ड्स, उस ब्रांच को जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला है उसके इक्वल ही होगा उनका सम। v1 + v2 + v3 इस ब्रांच को मिला है v इज इक्वल टू। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, 2 कैपेसिटर्स को अगर आप सीरीज में लगाएंगे तो आपका आंसर डायरेक्टली आ सकता है प्रोडक्ट अपॉन सम, और सीरीज में कैपेसिटर्स लगाने से जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का आंसर आता है वो हमेशा उस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटी वैल्यू वाला रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस है उससे भी कम उसका आंसर आएगा। ओके, सो यू मे कॉपी। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स नाउ वी मूव टुवर्ड्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा।
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सो अगेन मैं आपको याद दिलाऊंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। 10th क्लास में पढ़ी थी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। क्या था बेटा, रेजिस्टेंस को पहले ऐसे समझ लो, जितने भी सपोज 3 रेजिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं तो वो 3 रेजिस्टेंस 3 पैरेलल लाइंस में लगे हैं। अगर सच दैट सभी, देखो बेटा इलेक्ट्रिसिटी में जो भी आपको डिवाइस या इक्विपमेंट मिलेगा उसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के भी 2 टर्मिनल्स हैं, 1 2 1 2 1 2, हर चीज के 2 टर्मिनल्स होंगे दोनों, ठीक है। सपोज आप किसी फैन को प्लग इन करना चाहते हो तो उसके प्लग में 2 टर्मिनल्स होते हैं ना, जब तक आप दोनों को कनेक्ट नहीं करेंगे इट विल नॉट वर्क, ठीक है। इसको याद रखिएगा। सो अगर ये आपको पैरेलल में कंबाइन करने हैं अभी, तो आप इनको ऐसे कंबाइन करेंगे कि इनका सबका एक साइड का टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड होगा और दूसरी साइड के टर्मिनल्स एक साथ कनेक्टेड होंगे। समझ में आया? एक साइड के टर्मिनल्स एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे, दूसरी साइड के टर्मिनल्स एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ पैरेलल लाइंस बना देने से वो पैरेलल नहीं होता है, जब आप इनको ऐसे कनेक्ट करेंगे तब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब ये जंक्शन मतलब ये यहां से और यहां से ये अवेलेबल है सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट होने के लिए। ये सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बैटरी होता है या एक सेल होता है, ठीक है। सो इस पूरे कॉम्बिनेशन को जो पॉइंट्स ए और बी के बीच में है आप बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसके 3 ब्रांचेस हैं, 1 2 3, 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही हमारा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सपोज आई एम हैविंग 3 कैपेसिटर्स C1 C2 C3, C1 C2 C3। अगर मैं चाहता हूं इनको पैरेलल में कंबाइन करना तो क्या करना होगा, सच दैट their terminals on one side are connected together and their terminals of the other side are also connected together. Now we can say that between points A and B, this is a parallel combination of capacitors having 3 branches, 1 2 3, okay। इसको आप कनेक्ट करेंगे एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो हमें इस ब्रांच इस कॉम्बिनेशन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस देगा V। अब बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। क्यों होता है, कैसे होता है बराबर? अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन याद हो, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन याद हो तो इसको समझना आसान था। देखो बेटा आपने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B, वर्क डन in moving a charge from one point to the other, work done per unit charge। मान लो Q0 है वो टेस्ट चार्ज जो था, याद है ना, वो टेस्ट चार्ज जो आप मूव कराते थे। वर्क डन per unit positive test charge in moving it from one point to the other is known as potential difference between the 2 points। अब इस चार्ज को B से A तक लाने में आप चाहे सीधा लेकर आओ, चाहे ऐसे लेकर आओ, या किसी और पाथ से लेकर आओ, या इसको खूब सारा घुमा के ले आओ, this work done does not depend upon the path taken because the involved forces, कौन सी फोर्स है इन्वॉल्व, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, the involved force is conservative in nature। ये कंजर्वेटिव फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं उनसे किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ कोई भी हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब तक सेम रहेंगी वर्क डन सेम आता रहेगा। सेम इसको रहेगा 2 पॉइंट से A और B, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस किसने दिया, देखो इस सेल ने जो भी दिया दैट इज V। वो पोटेंशियल डिफरेंस चाहे आप इस वाले पाथ से मेजर करो या इस वाले पाथ से मेजर करो या नीचे वाले पाथ से मेजर करो जिसमें C3 लगा हुआ है, सबसे वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही आएगा ना, बिल्कुल ठीक है ऐसे, ठीक है। वेदर यू गो थ्रू दिस पाथ और दिस पाथ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B रिमेंस सेम। इसी तरीके से यहां पर है, वेदर यू गो थ्रू C1 यू गो थ्रू C2 और यू गो थ्रू C3। अब जब तक ये पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेंगे तीनों, जब तक इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 इज V, अक्रॉस C2 इज V, अक्रॉस C3 इज V, ठीक है। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस के लिए
करंट अलग अलग होता है हर ब्रांच में, ऐसे यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स के लिए चार्ज अलग अलग हो जाएगा तीनों ब्रांच में। सपोज इसने चार्ज दिया, टोटल चार्ज सप्लाइड इज Q, उस Q के पास यहां के बाद तीन पाथ अवेलेबल है। सपोज C1 से होता हुआ जाएगा और Q1 चार्ज इसको मिला प्लस माइनस Q1, इसको मिला Q2 और इसको मिला Q3, ठीक है, इसको मिला Q3। सो अब हमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से मिले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए वो ये है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference across each branch remains same। और वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द ब्रांच, वो उतना ही होता है जितना इस ब्रांच को पोटेंशियल डिफरेंस मिला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहां पर, यहां लिख देता हूं उसको। नेक्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग चार्जेस, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज charge on each capacitor is given by Q is equals to CV, Q is equals to CV से मिलेगा चार्ज। अब पोटेंशियल तो सबके पास सेम है, तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसके पास ज्यादा चार्ज आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, फॉर पैरेलल याद रखिएगा। इट मींस Q is proportional to C, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसका चार्ज ज्यादा, ओके, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। रिमेंबर कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की हेडिंग में इस रिजल्ट को पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सच दैट जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, उनका सम टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द सोर्स फॉर दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। उनका सम क्या आएगा, Q1 plus Q2 plus Q3 का टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द सोर्स फॉर दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन के लिए, ओके। क्योंकि तो तीन पार्ट हुए Q1, Q2, Q3, तो जैसे इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ओके। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द डेरिवेशन। भाई यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, एक बार फिर देख लें अगर कोई दो पॉइंट्स में कोई डाउट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, यूजिंग Q is equals to CV for all कैपेसिटर्स, जितने भी कैपेसिटर्स आपने पैरेलल में लगाए हैं, वेदर दे बी 3 और 30 और एनी नंबर, फॉर C1 के लिए जब लगाऊंगा तो Q1 is equals to C1 V, तो सबका सेम है ना, ये तो सबका सेम है। फॉर C2 Q2 is equals to C2V, and similarly for C3 Q3 is equals to C3V। ये मेरे इक्वेशंस हो गए 2A 2B 2C। इनको मुझे करना है एडिंग अबाउ इक्वेशंस, यहां करते हैं इनको ऐड करके बेटा रिजल्ट जो आएगा इधर होगा Q1 plus Q2 plus Q3, ठीक है ना। इन इक्वेशंस को ऐड कर रहे हो, इन इक्वेशंस को ऐड कर रहे हो, दिख रही है ना आपको, Q1 plus Q2 plus Q3, और इधर क्या आएगा C1V plus C2V plus C3V। ये क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये होता है टोटल चार्ज सप्लाइड टू दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को कितना चार्ज मिला था, और उधर से V कॉमन है, C1 plus C2 plus C3V, इस V को नीचे लेकर आते हैं, फिर से बन गया Q by V, पिछले डेरिवेशन में भी आया था Q by V। Q क्या है, टोटल चार्ज सप्लाइड, V क्या है, टोटल पोटेंशियल फॉर दिस कॉम्बिनेशन, तो व्हाट शुड बी Q by V, Q by V होगा इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, जिसको हम लिखेंगे C इक्विवेलेंट, वेयर Q by V is equals to C equivalent is resultant या equivalent is equivalent कैपेसिटेंस ऑफ
इसका ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3 व्हाट वी गेट, q by v की जगह c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू c1 plus c2 plus c3. This is the result. This is the result for equivalent capacitance of a parallel combination. Means अगर आपने तीन कैपेसिटर्स पैरेलल में लगाए हैं तो उनका रिजल्ट तीनों को सिंपली ऐड करके निकाल सकते हो. तो इट इज वेरी सिंपल. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है. इसके लिए स्टेटमेंट इन वर्ड्स, equivalent capacitance of parallel combinations of capacitors is equal to the algebraic sum of their individual capacitance. ये algebraic sum है ना, algebra में जैसे ऐड करते थे वैसे ही करना है. ठीक है, is equal to the algebraic sum of their individual capacitances. ठीक है, अगर ये n कैपेसिटर्स हो जाए तो C1 plus C2 plus C3 plus C4 up to Cn. For n capacitors C equivalent is nothing but C1 plus C2 plus C3 कहां तक, Cn तक. ये इसका स्पेशल केस है तरीके से. You can write it as स्पेशल केस. और अगर ये सारे कैपेसिटर्स इक्वल हो, सबकी कैपेसिटेंस इक्वल है, मान लो सारे 5 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड, ठीक है. इफ ये नेक्स्ट स्पेशल केस हो जाएगा, ऑल कैपेसिटर्स, ऑल कितने हैं वो, इफ ऑल n कैपेसिटर्स आर इक्वल कितने, सारे C हैं, तो क्या करोगे भाई, C इक्विवेलेंट को क्या करोगे, C प्लस C कब तक करोगे, n टाइम्स करोगे ना. तो क्या लिखूं इसकी जगह, अरे अगर तुमने लिखा है कहीं पर 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 और 6 बार लिखा है उसको, तो क्या आएगा, 6 into 4 आएगा ना. अब n बार लिखा है तो क्या आएगा, n बार लिखा है तो n into C आएगा, nc. यहां से आप एक चीज कह सकते हो कि अगर आप पैरेलल में कुछ कैपेसिटेंसेस लगा लोगे तो उनका जो आंसर आता है ना, इक्विवेलेंट आंसर, उनका आंसर बढ़ जाता है. देखो n टाइम्स C बढ़ जाता है. ठीक है, और किस तरह से बढ़ता है, जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स हैं इनमें से जो कैपेसिटर की सबसे बड़ी वैल्यू का होगा, इक्विवेलेंट आंसर पैरेलल कॉम्बिनेशन का उससे भी ज्यादा आएगा ज्यादा. अरे सब ऐड कर लो, सपोज एक आपका 2 एक 3 एक 5, वही जो भी लिए थे मैंने एग्जांपल सीरीज में, 2 प्लस 3 5 और प्लस 5 10. देखो 10 इज लार्जर देन द 5, जो सबसे बड़ा था उससे भी ज्यादा आंसर आना है यहां पर. ठीक है, पैरेलल में जो सबसे बड़ा है उससे भी ज्यादा आंसर आएगा, और सीरीज में जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा आंसर आता है. ठीक है, ये डिफरेंस है. ठीक, सो अगर आपको गिवन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करना है कि कैपेसिटेंस बढ़ जाए, तो आपको ने पैरेलल में लगाना चाहिए. और अगर आपको ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करना है कि कैपेसिटेंस कम हो जाए, तो आपको ने सीरीज में लगाना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा कॉम्बिनेशन दोनों का मिक्स भी होता है कि कुछ सीरीज में लगा दिए जाए और कुछ पैरेलल में लगा दिए जाए. उस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, और बेटा हम 2-3 न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, उसके साथ डिस्कस हो जाएगा. ठीक, सो पैरेलल में हमारे लिए यही है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर टुडे. आज का टॉपिक्स तो पूरे हो गए, लेकिन कुछ बात मैं आपको भी बता देता हूं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा आज लेक्चर नंबर 23 के खत्म होने के साथ साथ हमने ऑलमोस्ट सारे हेडिंग्स कंप्लीट कर लिए हैं. फिर भी मैं आज एक बार सिलेबस देखूंगा. मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग में कहा था, यू शुड हैव सिलेबस विद यू. आपके पास भी सिलेबस होगा. आप सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हमने कर लिए हैं सबको हाईलाइट करें या अंडरलाइन करें और चेक करें कि कोई टॉपिक बचा तो नहीं है. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हमारी नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास ही होगी. ठीक है, सो इट इज अ गुड न्यूज फॉर यू. और गुड न्यूज भी इसलिए कि हमने अपने इस लॉकडाउन पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश की है, और एक बड़ा यूनिट जो हमारे 12th क्लास के सिलेबस का एक बड़ा यूनिट है और फर्स्ट यूनिट है, जिसके साथ एकोमोडेट होने में हमें टाइम लगता है क्योंकि हमारा फर्स्ट यूनिट है 12th क्लास का, वो हमने इस पीरियड में कंप्लीट भी कर लिया है. ठीक है, विद दिस आई विल से गुड बाय टू यू नाउ, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम in this lecture you may comment to me
or you may send message on my WhatsApp number. I will reply as soon as possible. So beta, see you in the next lecture. Goodbye.